Hello everyone, how are you all? So today we have to discuss be at first year questions which is very important. This is the last minute preparation video. So without getting delay, let's begin from the first question of teaching and learning subject. So short note, let's begin with the short note as this question is very compulsory to attempt. You have no other options. You have to attempt it full. So let's begin. Differentiate between the teaching and learning. So first question, first part of short note is teaching and learning difference. So you know very well what is teaching. Teaching is providing the knowledge. Teaching is what you are providing the knowledge to students. Yes, in a broader sense, if we talk about. But in training means you are getting the experience in specific field. यानी कि specific field में आप experience ले रहे हो उसको हम teaching बोल रहे हैं. ठीक है. जो टीचिंग होती है बच्चे वो होती है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें शामिल होती है. मीन्स हमने कोई चीज़ टीचर ने हमारी पढ़ाई और उसको हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया. ठीक है. वहीं पर जो आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं. वी लुक आफ्टर ओनली द प्रैक्टिकल थिंग्स. एंड when we teach children we impose creativity, problem solving, and encourage children. We actually encouraging children to show their creativity and solve the problem, brainstorm. But in training we give the task, we give particular task to a student or to a person, and he or she do it in a repeated way. Okay. In totality we can say he or she is practicing that activity or that task. Like for example, as a cashier in a bank you can write in your own words or you can take your own examples कि एक कैशियर है बैंक में. वो क्या कर रहा है, उसको ट्रेनिंग मिलती है. वो कोई उसका बैकग्राउंड नहीं था. ठीक है. एज अ बैंकर उसका कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं था बैंक से रिलेटेड. बट स्टिल ही इज able to be a cashier. How? In a private banks, you know it very well. So how he is doing it that? So the reason is only that he is doing in a repeated way. So this is called a training. Yes. Now teacher is a facilitator, whereas in the training you can say who gives you instruction is an instructor और अ कोच. मीन्स हम इंस्ट्रक्टर बोलेंगे उसको कोच बोलेंगे. बट यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर है. मीन्स प्रोवाइड कराने वाला, फैसिलिटेट कराने वाला. ठीक है. जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं टीचिंग लाइन में तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं. बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो हर फील्ड में, नॉट ओनली इन द लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट बट ऑल्सो द co-curriculum activities. Yeah, so we work on overall development of the learner. Whereas in training we only focus on one task which he is doing on a repeated way on a daily basis or practicing daily on daily basis. Okay. Yeah. So in totality we can say teaching is the process of imparting knowledge, developing understanding, attitudes, values among learners, whereas ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स. यानी कि अगर हम मोटा मोटा अगर हम देखें तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो टीचिंग है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है. आप सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो, आप उनको खिला भी रहे हो, आप उनको क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हो. ठीक है. वहीं पर ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग में बच्चा जो सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली करके देखता है. ठीक है. पर एक पर्टिकुलर फील्ड में. ठीक है. उसे एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है. सपोज कंप्यूटर एक इंसान को सिखाया गया है और उसको कंप्यूटर पे उसे डेटा एंट्री करनी है तो डेटा एंट्री की उसको ट्रेनिंग मिलेगी. ठीक है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग. एंड एट लास्ट यू कैन राइट दैट यू कैन सी टीचिंग मीन्स व्हाट, लर्निंग वाई एंड व्हाट. मीन्स आप जब सीख रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछते हो ऐसा क्यों है मैम, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो गया. ठीक है. ये क्या है मैम. तो दिस वे. वेयर इज इन ट्रेनिंग तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है कि मैम हाउ टू डू इट, कि हम इस टास्क को कैसे मतलब करें. येस. सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट नोट. इन योर वर्ड्स यू कैन राइट. Next short note is uses of ICT in teaching learning. ICT, what ICT is
tools you are using while you teach children. So first uses you can write multimedia learning. What is multimedia learning? When you are using the um, uh, Zoom, YouTube videos and all. Like for example, I'm teaching you through the YouTube. So this is also the use of ICT. So multimedia is basically you are preparing the PPT for the children. Like I have prepared one PPT for you, then I have prepared video for you, and I sometimes show you pictures. So I prepared that for the I'm making lessons more engaging, यानी कि आप और इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ पाते हो. यस, एंड एसेस टू लर्निंग रिसोर्सेज. सो एक और है कि आप जो रिसोर्सेज हैं लर्निंग के, तो आप इजीली असेस, मतलब आपको बहुत इजी हो जाता है असेस करना. ठीक है, आप जैसे आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो गूगल बाबर से आप सर्च कर लेते हो, क्रोम पे जाते हो, या ई बुक्स मिलती हैं आपको कॉलेज की तरफ से, ऑनलाइन जो बुक्स होती हैं आप वो डाउनलोड कर लेते हो, एंड यू कैन ईजिली रीड एंड राइट एवरी एंड एनीवेयर एवरीवेयर. ठीक है, आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपको बुक सारी मैं बुक भूल गए, कोई बात नहीं, आपके पास इंटरनेट है, यू कैन यूटिलाइज इट. ठीक है, इंटरेक्टिव क्लासरूम. सो इंटरेक्टिव क्लासरूम्स रहती हैं, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो है पढ़ते हैं. जैसे कि वाइट बोर्ड्स, जैसे कि आज की आपकी क्लासेस में जो नाउअडेज यू कैन सी सो मेनी क्लासेस हैव वाइट बोर्ड्स. एजुकेशनल एप्स यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड सबसे फर्स्ट जो थिंग है कि से आप कहीं पर भी हो आप एजुकेशन ले सकते हो. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ICT. मीन्स जैसे आप अगर एक इग्नू से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे डिस्टेंस एंड लर्निंग मोड होता है, यानी कि आप दूर बैठे भी आप अपना कंटेंट जो है आप ले सकते हो. कैसे? आपको ई बुक्स के थ्रू आपको मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द वे. जैसे कि आपने जूम के थ्रू आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप बहुत दूर बैठे हो, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप क्लासेस ले रहे हो. सो दीज आर द यूजेस ऑफ ICT. सो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली लिखना, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द नीड ऑफ ओरल एवेल्यूशन एज अ एवेल्यूशन डिवाइस. सो आपको एवेल्यूशन का मतलब क्या होता है? मीन्स मूल्यांकन करना, यानी कि आप ये देखोगे कि बच्चा जो है वो किस तरह से पढ़कर उसने क्या चीज़ ग्रैब करी है, कितना ग्रैब किया है. सो वी आर एवेल्यूएटिंग डेली और सेमेस्टर वाइज. लाइक वी हैव फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूल्स, समेटिव असेसमेंट इन स्कूल, UTs, PD1. So all these are. So what is the oral evaluations? And when we talk about the oral evaluation, it's a essential assessment device. Means बहुत essential device है जो कि बच्चे की कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें तुरंत पता चलती है कि जब हम ओरली इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चे के साथ. जैसे आपने देखा होगा जो 2000 के टाइम के जो स्कूल्स रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे रहे हैं, तो उनकी क्लास में 9th-10th में लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होता था. तो मैम ने एक लिसनिंग एक्टिविटी रखती थी, यानी कि आपसे 10-20 क्वेश्चंस पूछती थी, तो आपको अपने वर्ड्स में बताना होता था. तो दिस इज़ द वे. आप एक ओरल एवेल्यूएशन में टीचर जो है वो आपको एज अ रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, यानी कि आप रियलिटी में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो वो सिचुएशन आपको प्रोवाइड कराती है टीचर. सो ओरल मतलब यानी कि बोल कर वो एवेल्युएशन आपका कर रही है, मूल्यांकन कर रही है दैट हाउ यू आर good at speaking, basically this. So this is can be a verbal communication. It's provided interactive unscripted environment. Means environment unscripted होता है, जो आपने रिस्पॉन्ड किया उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके टीचर्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं. ठीक है, आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हो. तो दिस इज ऑल्सो makes you confident. Yes, and it's also showing what? It's also showing that the child is able to perform at any platform. Yes, so this is the need of oral evaluation. So what is oral evaluation? You now understood what is oral evaluation. Now why it is needed? So why it is needed class? Deep conceptual testing means अगर आप खुद ही आप सोचिए, अगर आपका पेपर हो रहा है, राइटिंग पार्ट हो रहा है, रिटन पार्ट हो रहा है, तो हाउ यूनिवर्सिटी नो अबाउट यू कि आप बहुत ही
क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप की स्पीकिंग बहुत अच्छी है और आपके अंदर डीप नॉलेज है, हाउ दे गेट टू नो अबाउट, बिकॉज सबका पूरा पूरा पेपर तो दे विल नॉट चेक, येस पूरा कंप्लीट पेपर दे विल नॉट चेक. सो डीप कंसेप्चुअल टेस्टिंग होती है जैसे रिटन टेस्ट के अलावा, क्योंकि रिटन टेस्ट में क्या है कि आप सिर्फ कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है. इट्स कैन बी अ रूट मेमोराइजेशन, कहने कि आपने रटा और वो लिख कर आ गए, लेकिन जब आप ओरली जब आप स्पीक करते हो बोलते हो तो आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं, ठीक है, आप इन्वायरमेंट को देख कर बोलते हो. देन है रियल टाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप एक रियल टाइम सॉल्वर बनते हो, यानी कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओरल एवेल्यूशंस के थ्रू हमें टीचर्स को, मतलब एज अ टीचर हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो कितना रियल टाइम सॉल्वर है. कम्युनिकेशन स्किल्स पता चलती है बच्चे की और इम्प्रूव होती है कम्युनिकेशन स्किल, विच इज़ अ वेरी प्राइमरी बेसिक रिक्वायरमेंट इन एजुकेशन. देन ऑथेंटिक असेसमेंट, तो ऑथेंटिक असेसमेंट मीन्स यानी कि एक बहुत ही ऑथेंटिक असेसमेंट है और ये टीचर्स को प्रोवाइड करता है कि वो इमीडिएटली बच्चे का मूल्यांकन कर पाते हैं, यानी कि एवेल्युएट कर पाते हैं कि वो बच्चा कितनी नॉलेजेबल वो बच्चा है, ठीक है. आप इजीली मतलब डायग्नोज भी कर पाते हो अगर आपको कहीं बच्चे की कमी भी पता चल रही है ना. सो जैसे आपको किसी की बच्चे की कमी पता चली तो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो. तो एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ऑथेंटिक असेसमेंट बोला है तो आप ये भी बोल सकते हो कि ओरल एवोल्यूशन हेल्प्स यू टू डायग्नोज चिल्ड्रन वीकनेस जो बच्चे की है उस पर आप वर्क कर सकते हो, कैन वर्क ऑन देयर वीकनेसेस. सो ओरल एवोल्यूशन मतलब तुरंत ही पता चल रहा है ना आपको, सारी चीज़ें बच्चे के बारे में तुरंत पता चल रही है जब वो बोलना शुरू कर रहा है, वो कितना. और समटाइम जैसे हमारा इंटरव्यू होता है, बेस्ट एग्जांपल है ओरल एवोल्यूशन का, आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, आपका 9-10 क्लास में लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है, तो दैट यू कैन ऑल्सो टेल. स्टडी हैबिट शिफ्ट हो जाती है, यानी कि द नॉलेज दैट दे विल बी एग्जामिन वर्बली एनकरेजेस स्टूडेंट टू स्टडी फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड देन सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स फॉर मल्टीपल चॉइस टेस्ट. यानी कि जब इससे आपकी एक हैबिट में आता है कि आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है, आप इनक्रेज होते हो कि आप अंडरस्टैंडिंग जो डीपली अंडरस्टैंडिंग है वो लो, ठीक है. सो दिस इज़ द शॉर्ट नोट विच वी हैव प्रिपेयर्ड. सो ये आपका तीनों जो मैंने शॉर्ट नोट आपको कराए हैं, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल. यस क्लास.